नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश हैं ATV पर गुलबर्गा की ख़बरें। सबसे पहले अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस सुफ़ा के इंतखाबात में 51 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस सुफ़ा गुलबर्गा के इंतखाबात की शफाफियत पर उठा सवाल। आशा वर्कर्स की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल। पंचायत इंतखाबात के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। गुलबर्गा शहर में 22,674 मकानात में नहीं है बैतुल क़िला। नाजरीन, पेश हैं ख़बरें तफसील से। रियासतगीर सतह पर एहतजाज कर रही आशा वर्कर्स की हड़ताल आज 7वें दिन में दाखिल हो गई। आशा वर्कर्स ने आज गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही। राघवेंद्र एमजी ने इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि 7 दिन से एहतजाज जारी रहने के बावजूद रियासती हुकूमत ने आशा वर्कर्स के मुतालबे पर तवज्जो नहीं की। उन्होंने इस बात पर सख्त बरहमी का इजहार किया कि डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा और ज़िला हेल्थ ऑफिसर गुलबर्गा ने गुलबर्गा शहर में ज़िलाई सतह पर जारी आशा वर्कर्स की हड़ताल के बारे में 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद रियासती हुकूमत को रिपोर्ट रवाना नहीं की। ಇವತ್ತು 7ನೇ ದಿನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 7 ದಿವಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಣ್ತೆರಿತಾ ಇಲ್ಲ। ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ನಿನ್ನೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ವರದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ DHO ಆದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದದ। ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ DHO ಇಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಬಂದಂಥ ಏನು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸುಮಾರು 90% ಜನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 1 ಸಲ ಅಲ್ಲ 2 ಸಲ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜಿರಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 500 ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 400-450 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಹಾಕಬೇಕು। ಮತ್ತು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು। ಮತ್ತು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 2,200 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರೋಂಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ MG ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ
ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೂಡ ನೀಸ್ತಿನ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ PSC ನೀಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಂತ್ಲಿ ಕೊಡೋದು 2,200 ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. 2,000 ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. दो जून को गुलबर्गा ज़िला में मुनक़्क़द शुदनी ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में आज शहर के SM पंडित रंग मंदिर में इंतखाबी अमले का तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा विपुल बंसल ने मुखातिब करते हुए ग्राम पंचायत इंतखाबात के पुरअमन और साफ़ व शफ़ाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद हिदायत दी। उन्होंने लोकसभा और असम्बली इंतखाबात का ग्राम पंचायत इंतखाबात से तक़ाबुल करते हुए कहा कि यह इंतखाबात बहुत बड़ा चैलेंज हैं। इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वालों से जब डिप्टी कमिश्नर ने सवाल किया कि उनमें से कितने लोग पहली बार ग्राम पंचायत इंतखाबात की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने हाथ उठाकर बताया कि वो पहली मर्तबा ग्राम पंचायत इंतखाबात की ड्यूटी कर रहे हैं। इस मरहले पर डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा विपुल बंसल ने बताया कि उनके लिए भी ग्राम पंचायत इंतखाबात का ये पहला तजुर्बा है। ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇವೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲದೆ then there will be some statutory action. Not only Karnataka Civil Service Code अनुसार action, it will be an action based on the overall superintendence and control of the elections in the State Election Commission. So ಅವರೇ ನಾರ್ಮ್ ಅನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. So ನಮ್ಮ main purpose to tell you is from until June 7th, your leave, your all conditions of service is controlled by the State Election Commission. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ARO ಡ್ಯೂಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ನಾವು ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಅ 2008 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ವಾಸ್ ದಿ MLA ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2008 ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಜನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. नाजरीन, आज हम आपको चंद ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो आपको यकीनन चौंका देंगे। गुलबर्गा शहर में 22,674 मकानात ऐसे हैं जिनमें बैतुल ख़ला की सहूलत नहीं है। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें देही इलाक़ों को खुले मुकाम पर रफ़ा हाजत करने की समाजी लानत से पाक करने के मंसूबों पर अमल आवरी करने करोड़ों रुपयों का फ़ंड जारी कर रही हैं, लेकिन शहरों में भी ये लानत पाई जाती है। एक ताज़ा सर्वे से मालूम हुआ है कि गुलबर्गा शहर में 9,542 ख़ानदान आज भी खुले मुकाम पर रफ़ा हाजत करने पर मजबूर हैं। कुल 22,674 मकान गुलबर्गा शहर में ऐसे हैं जिनमें बैतुल ख़ला की सहूलत नहीं है।
यकीनन ये एदाद व शुमार चौंका देने वाले हैं। साथ ही गुलबर्गा शहर में बुनियादी सहूलियात की किस कदर कमी है इसका भी इससे इंकशाफ होता है। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के 55 वार्ड्स का सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक ज़ाती मकानात की तादाद 52,456 और किराए के मकानात की तादाद 1,622 है। इस तरह शहर में कुल 54,077 मकानात हैं। इनमें से 42,740 मकानात में ही बैतुल ख़ला की सहूलत है। 11,337 मकानात ऐसे हैं जिनमें बैतुल ख़ला की सहूलत मुहैया नहीं है। 1,795 मकानात ऐसे हैं जिनके मकीन अवामी बैतुल ख़ला पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि 9,542 ख़ानदान खुले मुकाम पर रफ़ा हाजत करने पर मजबूर हैं। इस तरह गुलबर्गा शहर में कुल 22,674 मकानात के रहने वालों को बैतुल ख़ला की सहूलत मुहैया नहीं है। गुलबर्गा शहर में 31,097 मकानात ऐसे हैं जिन्हें ड्रेनेज की भी सहूलत नहीं है और 15,490 मकानात नल कनेक्शन से महरूम हैं। नवमुंतखब मेयर गुलबर्गा भीम रेड्डी पाटिल ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो गुलबर्गा शहर को खुले मुकाम पर रफ़ा हाजत करने की लानत से पाक करेंगे। उन्होंने बैतुल ख़ला की तामीर के लिए फ़ी ख़ानदान 18,000 रुपये गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन से इमदाद मुहैया करने का भी ऐलान किया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मेयर भीम रेड्डी पाटिल 22,674 मकानों को बैतुल ख़ला की तामीर के लिए इमदाद मुहैया कर पाएंगे? तकरीबन 41 करोड़ की इमदाद दरकार होगी। क्या इतनी ख़तीर रकम की इमदाद मुहैया करना मुमकिन है? यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा गुलबर्गा के इंतखाबात में क्या शफाफियत होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि मीडिया के नुमाइंदे आज जब इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की फ़हरिस्त लेने पहुँचे तो उनसे कहा गया कि फ़हरिस्त नोटिस बोर्ड पर आवेज़ां कर दी गई है, आप असाब नोटिस बोर्ड से उम्मीदवारों के नाम नोट कर लें। इसका साफ साफ मतलब ये है कि उम्मीदवारों के नामों को आमतुल मुस्लिमीन में आम ना किया जाए। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा गुलबर्गा के इंतखाबात के सिलसिले में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आज आखिरी दिन कुल 27 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अंजुमन यतीम खाना अंसारुस्सुफ़ा गुलबर्गा के ज़ायद अज़ 30 साल बाद इंतखाबात हो रहे हैं। 30 साल से ज़ायद अरसे से एक ही कमेटी काबिज़ थी, जिसके ख़िलाफ़ मौसर अवामी एहतजाज के नतीजे में 2009 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने इस कमेटी को तहलील कर दिया। नई कमेटी की तश्कील के लिए इंतखाबात को मुसलसिल टाला जाता रहा। 2011 में सैयद तैयब अली याकूबी को एडमिनिस्ट्रेटर नामज़द किया गया। इंतखाबात करवाने के ख़िलाफ़ मुसलसिल अवामी एहतजाज होता रहा। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 2013 में सैयद अब्दुर्रब को इलेक्शन ऑफिसर नामज़द किया, लेकिन उन्होंने इलेक्शन ऑफिसर की ज़िम्मेदारी कबूल करने से माज़रत चाही। उनके बाद रहमतुल हक़ बेंगलुरु को इलेक्शन ऑफिसर मुकर्रर किया गया, लेकिन ये मौसूफ भी 6 माह से ज़ायद अरसे तक इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे। इंतखाबात करवाने के मुतालबे पर फिर से अवामी तहरीक शुरू की गई। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बिलाखिर 17 मार्च 2015 को इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। सैयद अब्दुर्रब को दोबारा इलेक्शन ऑफिसर नामज़द किया गया। 7 ता 4 मई के दौरान पर्चाए नामज़दगी दाखिल किए गए। 4 मई पहले दिन 2, दूसरे दिन 5 मई को 9 और तीसरे दिन 6 मई को 13 और आज आखिरी दिन 7 मई को 27 पर्चाजात नामज़दगी दाखिल किए गए।
23 मई बरोज़ हफ्ता राय दही मुकर्रर है। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा की 9 रुकनी इंतज़ामी कमेटी के लिए हो रहे इंतखाबात में कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 123 पर्चाजात नामजदगी हासिल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 51 उम्मीदवारों ने ही पर्चे नामजदगी दाखिल किए। राय दहिंदों की कुल तादाद 1369 है। बरोज़ जुमा 8 मई बाद नमाज जुमा पर्चाजात नामजदगी की जांच होगी। मुकाबले से दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवारान 11-12 मई को पर्चाजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। अरसे दराज बाद हो रहे यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा के इंतखाबात में उम्मीदवारों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है और पहली बार ऐसा इंतखाबी माहौल देखने में आ रहा है। यतीम खाना की जायदाद व इमलाक, खुली अराज़ी, नाजायज़ कब्ज़ों, आमदनी के इस्तेमाल और यतीमों की नाक़िस किफ़ालत को लेकर मुतअद्दिद इल्ज़ामात अवामी बहस का मौजू बने हुए हैं। इंतज़ामी कमेटी के रुकन मुंतखब होने पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारान से ATV ने गुफ्तगू की। तकरीबन सभी उम्मीदवारान ने यतीमों की खिदमत करने, यतीम खाने को तरक्की देने, यतीम खाने की जायदाद व अमलाक, खुली अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करने, नाजायज़ क़ाबिज़ीन का तख्लिया करवाने, गरीब मुसलमानों के लिए शादी खाना तामीर करने, गरीब व नादार तलबा की फ़ीसेस अदा करने, हॉस्टल तामीर करने, यतीम खाने में ज़ेर किफ़ालत बच्चों की मौजूदा कम तरीन तादाद में इजाफ़ा करने के अज़ाइम ज़ाहिर किए हैं। दिलचस्प अमर यह है कि यतीम खाने में सिर्फ़ 6 बच्चे ज़ेर किफ़ालत हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर के बशमूल 22 रुकनी स्टाफ काम कर रहा है। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा के इंतखाबात को लेकर आमतुल मुस्लिमीन में गैर मामूली तजस्सुस पाया जा रहा है और ये सवाल गश्त कर रहा है कि क्या नई बॉडी यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफ़ा की हालत लाने पर तवज्जो कर पाएगी। इसका मकसद क्या है? यतीम खाना अंजुमन सफ़ा सुन्नी का जो इलेक्शन कॉल किया गया है, मैंने उसमें अपनी नुमाइंदगी के लिए अभी पर्चा दाखिल किया है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने पूरे दिल से इस इदारे की खिदमत करूँगा अगर मैं चुन के। तो इस इदारे को तरक्की देने के लिए आपके पास कोई ख़ास मनसूबा प्लान है? इंशाअल्लाह ताला इस इदारे के लिए, क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ द सिटी में आता है, तो इसके लिए कोई मंसूबा जो आगे जो बॉडी बनेगी उसमें कितने हम ख्याल लोग आते हैं और क्या प्रपोजल्स लाते हैं, वो देख के इंशाअल्लाह ताला उसके पर अमल किया जाएगा। आपका प्रपोजल अज़ाइम क्या है? इंशाअल्लाह इस जगह को एक अच्छा एजुकेशनल हब बनाना चाहिए। वहाँ के है सो जो घर हैं, जो यतीम खाने में लोग रहते हैं, उनको अच्छे घर बना के वहीं पे देने का इरादा है। मेरा अपना ज़ाती सोच रखता हूँ मैं कि इंशाअल्लाह नाम यतीम खाना है, लेकिन वहाँ यतीम कम है, दौलतमंद ही ये ज़्यादा। इस यतीम खाने के ताल्लुक से लोगों को ये इल्म नहीं है कि इस यतीम खाने के बाइलाज में यतीम खाने में यतीम लोग, यसीर लोग और गरीब लोग, ये तीनों के लिए आता है। तीनों के लिए तो क्या है? ये जब इसके लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जितने गरीब हैं, गुरबा हैं और यसीर है, यतीम हैं, उनको वहाँ पे अच्छे फैसिलिटीज़ दिए जाएं, उनकी तालीम पे तवज्जो दी जाए और उनको यहाँ से कामयाब मुसलमान, कामयाब शख्स बना के निकालने का इंशाल्लाह ये एक फलाही इदारा है। बिल्कुल। तो इसमें फलाह से मतलब फलाह उन लोगों के लिए होना चाहिए जो गरीब है, इमदाद के मुस्तहिक़ है। एजुकेशनल स्कीम्स में भी आप जो यूज़ कर सकते हैं। इसकी बड़ी अराजी है, इस पर ऐसे लोगों को लीज दिया गया है जो फलाह की तारीफ में नहीं आते, मुस्तहिक़ नहीं है। ये जब हम अंदर जाएंगे तो जब देखेंगे तो मिल्लत के गरीब नौजवान हैं, उनके रोज़गार के लिए ये ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस बारे में क्या? मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अकेले अपना पर्चा दाखिल किया है। इंशाल्लाह ताला जब पैनल पूरा मुकम्मल होगा या जब पूरी बॉडी आएगी आप तो मैं अपना प्रपोजल बराबर इस ताल्लुक से रखूंगा। लोग आपको वोट क्यों दें जबकि आप कोई अपना सिर्फ अंदर जाने की बात कर रहे हैं? मैं अंदर जाऊंगा तो प्लान आपका हो तो लोग आपको वोट देंगे ना। क्या अज़ाइम है आपके, वो तो मालूम होने चाहिए। अभी मैंने आपको कहा है कि वहाँ पे जब आपका कोई
बॉडी बनेगी तो उसकी एक वर्किंग स्टाइल बनता है, उसके बाइलास बनते हैं, उसके Body- काम करने का तौर तरीका बनता है। इलेक्शन जिस तरीके से हो रहा है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम ख्याल लोगों की बॉडी नहीं बनेगी, हर शख्स अलग अलग ख्यालात का आ रहा है। जब बात यतीम खाने की होगी तो एक कॉमन कंसेंसस पे तो आना पड़ेगा पूरे लोगों को, क्योंकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो इदारा यतीमों का है, यतीम खाना है, वो गरीबों के लिए है और वहाँ पे सिर्फ उनके लिए ही काम हो सकता है। नॉमिनेशन दाखिल किया है जी, तो इस यतीम खाना अंजुमन अंसार सुल्ता की इंतज़ामी कमेटी के मेंबर बनने का आपका क्या मकसद और इरादे हैं? मकसद यही है कि भाई एक यतीमों की जगह है और मिस्किनों की और गुरबों की लोग जो है वक्फ करें हैं, तो उस वक्फ की उस प्रॉपर्टी को जो है हिफाजत किया जाए और इसमें वक्त देकर कौम और मिलत की जो है मदद की जाए। इसमें जो है दूसरे गलत चीज़ें ना हों, इस वजह से जो है हमें महसूस हुआ कि हम इसमें थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं अपना वक्त देकर, तो इसलिए हमारी दिलचस्पी हुई कि इसमें नॉमिनेशन डालकर जो है इलेक्शन को लड़ा जाए, देखा जाए कि भाई हम कुछ इसमें हम मदद कर सकते हैं क्या। इसमें यतीम बच्चों की तादाद सिफर के बराबर है। हाँ, तो नाम बैलास यतीम में खाना है। बैलास में लिखा है यतीम गुरबा और जो है मिस्किनों के लिए। अब यतीमों की तादाद कम हुई है इसलिए कि माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है दीनी शोर ज़्यादा है, कोई यतीम हुआ है तो घर के बाहर निकाल नहीं देता है, आप रिश्तेदार वगैरह जो है उनको संभाल रहे हैं। लेकिन गुरबा और मसाकिन के लिए हमारे लिए जगह रखी गई है, तो गुरबा और मसाकिन को जो है आइडेंटिफाई कर उनको मदद की जाएगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त। मदद किस तरह की मदद? एजुकेशन मदद होगी। पहले हमारा मोटिव यह है कि भाई हम वहाँ पर नर्सरी से लेकर PhD तक हॉस्टल बनाया जाए, मुस्लिम बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जाए वहाँ पर और रहने के लिए इंतज़ाम, ताकि तकरीबन डिस्ट्रिक्ट के तमाम खेड़े गाँव से जो बच्चे आते हैं उनको यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, खाना और रहना उनके लिए फ्री दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन और उनका जो है परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद दूसरा जो है हमारा इरादा है वहाँ के लोकल जो रेसिडेंट्स लोग हैं उनको भी जो है अच्छा रहने का इंतज़ाम किया जाए। तो अब फिल वक्त पूरे सड़कों के घरों में हैं, टीनों के घरों में हैं, वैसे जो जेन्युइन लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो गरीब लोग हैं उनको भी जो है अच्छा एक शेल्टर दिया जाए और सही तरह से हमारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो। वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, जी, जिस पर दिए गए हैं, जी, तो उसमें किसी किस्म की शफाफियत ना होने के हाँ इंशाल्लाह इल्ज़ामात कोशिश सामने आए? नहीं इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। आने वाले वक्त में अब तक जो हुआ हम उस ताल्लुक से हमको नॉलेज नहीं, हम उस ताल्लुक से कुछ बोल नहीं सकते। आने वाले वक्त में ये हम उसको जो है पूरा क्या बोलते हैं पाक और साफ़ शफाफ जो है फैसले करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश है हमारी। इंतखाबात का जो नोटिफिकेशन आया था जी, उसमें ये वाज़े किया गया था कि जो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखता है, जी, क्योंकि ये सुन्नी इदारा है, वही इसमें इंतखाबात में हिस्सा लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि सुन्नी सिर्फ दो ही, शिया और सुन्नी दो ही मुसलमानों में तबके हैं। जी, क्या आप इस नज़रिए को मानते हैं? देखिए क़ानूनी अगर एतबार से देखा जाए तो क़ानून गवर्नमेंट के एतबार से दो जाए तो ये है कि भाई क़ानून के तौर पर शिया और सुन्नी दो ही होते हैं। अब हमारे को उसको हम गवर्नमेंट को पेश करना चाहिए। अगर हमारे पास जितनी भी फ़िरक़े या हमारे ग्रुप बंदी हुई है उस ताल्लुक़ से अभी लोगों को ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, तो आने वाले वक्त में देखेंगे क्या हो सकता है। हम उस ताल्लुक़ से मैं इस दौर पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा। एफिडेविट लिया जा रहा है जी, जिसमें अहले सुन्नत जमात का इक़रार है, जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं अब सबसे गुजारिश करता हूँ कि भाई जो लोग अहले सुन्नत जमात बोले तो अब हर एक कोई अपने आप अहले सुन्नत जमात की वजाहत नहीं हो रही। हाँ, अब वो वजाहत भी नहीं हो रही है। लोगों जो है हर जमात वाला फिल वक्त अहले सुन्नत जमात बुरा है, तो उनके नियतों पर डिपेंड है, हम कुछ भी बोल नहीं सकते। क्योंकि मसलक अहले सुन्नत से और मसलक आला हज़रत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस लिहाज से मैं ये हमारे नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आखिर अहले सुन्नत जमात का हलफनामा दाखिल करने से क्या कोई सुन्नी हो जाता है? नहीं, वैसा नहीं है। वो उनकी सोच है, उनकी दियानतदारी है। वो लोग जो जमातों को तायद करते हैं, जो जमातों को चाहते हैं, वो अपने जमातों के साथ रहे। ये छोटी चीज़ के लिए अपने वो तायद करने वालों को, चाहने वालों को छोड़ कर मत आइए। अगर उनको छोड़ के आना है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको इस्तक़बाल करते हैं, अहले सुन्नत जमात में शामिल हो जाइए।
एक सच्ची जमात, अच्छी जमात है जो औलिया कराम से होते हुए हमारे को मिली है ईमान के शक्ल में। हम उसको तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप रुकन मुंतखब होने के बाद जी। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस सफ़ा में एक सच्चे सुन्नी की हैसियत से जी वहाँ कुछ सुन्नियत के प्रोग्राम्स वगैरह का इनेकाद करेंगे? देखिए साहब, मेरा अकेले का नहीं है, वो बैलास में खुल्लम खुल्ला लिखा गया है उसके जो मुताबिक हाँ उसके मुताबिक काम होगा। जो बैलास में लिखा हुआ है वही उसके सुन्नियत मुताबिक का काम भी सुन्नियत उसमें का होगा। काम होगा। सुन्नियत के हटकर कोई काम नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बैलास में लिखा हुआ है। क़ानून कहता है कि वो बैलास में जो लिखा है उसको माना जाए, और वो मानने के एवज़ में ही हम यहाँ पर पर्चा दाखिल कर रहे हैं कि भाई महल सुन्नत जमात के वहाँ कामों को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ पर नाफिज करेंगे। अहले सुन्नत वल जमात के एक दो काम सरगर्मियाँ बताइए क्या हो सकती हैं? इंशाअल्लाह तालीम बालिगान होगी, बच्चों को तालीम दी जाएगी, जो बच्चे वापस रहने आएंगे। अहले सुन्नत वल जमात की शनाख्त नहीं होती, जैसा कि सालाना फातिहा खानी है, हाँ दरूद की देखिए, महफिल है, हाँ वो इस अगर तरह की चीज़ें देखिए, अहले सुन्नत हाँ वल जमात की जो जी 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 आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम लोग जो है हर आदमी चीज़ शरीफ है जी जी तो औलिया किराम के नहीं, राज ये में ये इस चीज़ें मौके नहीं पर नहीं प्रोग्रामों का इनेकाद नहीं ये चीज़ों बिल्कुल हमारे असलाफ की अहले सुन्नत वल जमात की- हमारे असलाफ के जितने भी ये आएंगे प्रोग्राम आएंगे, जैसा उर्स मुबारक आएगा, उस दौरान जो है हम जलसे रखेंगे, लोगों को हमारे असलाफ की तारीफ़ और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली जाएगी। हाँ दूसरी बात रही 11वीं और ये सब चीज़ों की मुस्तहब चीज़ें हैं, इस पर ये सलाम पढ़ने पे बिल्कुल सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सलाम पढ़ा जाएगा, दुरूद पढ़ा जाएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद की महफिल होगी। देखेंगे इंशाल्लाह हर पहलू पर हम कोशिश करके उसको पाबंदी करें। तो क्योंकि जो मेम्बरान आज हलफनामा दाखिल कर रहे हैं जी। उनके इंतखाब के बाद इन चीज़ों को भी उनको मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल मानना क्योंकि उन्होंने पड़ेगा। लिखा उसमें ये बताया गया कि अगर मैं इस पर कायम नहीं रहा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, रुकनियत खारिज हो सकती है। रुकनियत खारिज भी हो सकती है, 3 साल की सज़ा भी है जो झूठा हलफनामा लेता है। तो देखेंगे, हमारे पास हम दुआ करते हैं अल्लाह से, और हुज़ूर बंदा नवाज़ का शहर है, हुज़ूर बंदा नवाज़ का फैज़ हम पर हो और अहले सुन्नत जमात के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आएँ और अपने इदारे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। आप जो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं आपका मकसद क्या है? बस मकसद ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात दिए हैं, वो तालीमात को जो है हम शहर गुलबर्गा में सैयद के सुधरात लाए हैं, वही तालीमात को पूरी आवाम तक पहुँचाने के लिए इसके अंदर दाखिल होंगे, जिसमें सलाम होगा, दुरूद होंगी, महफिल होंगे, सारे मामलात में जो है उसी अंदाज से काम किया जाएगा, जिसमें अखलाक हो, ज़ाब्ता हो, सच्चाई हो, दियानतदारी हो, वफ़ादारी हो, जो सारी की सारी इस्लाम ने हमें चीज़ें दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दिए हैं, वही पैगाम को जो है हम यतीम खाने के अंदर जितने भी यतीम रहेंगे और भी उसके अंदर लोग रहेंगे, उन सारे लोगों को इसका इल्म अता करने के लिए ये दिया गया है, और इसी के लिए हमने इसको कबूल करने के लिए आप जो यतीम खाना अंजुमन अंसार सुफ़ा की इंतज़ामी कमेटी के रुकन के हिस्से से इंतखाब कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है आपका? मकसद ये है कि पिछले जो मैनेजिंग कमेटी थी, यहाँ पर एक मैनेजिंग कमेटी थी 2009 तक, यहाँ मिस मैनेजमेंट मिस अप्रोप्रिएट फंड होने के बाद वो मैनेजिंग कमेटी को सुपरसीड किया गया है। इंक्वायरी सबिया बेगम जो है उनकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट थी, वो इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पे स्टेट वक्फ बोर्ड ने शोकस नोटिस जारी किया। शोकस नोटिस जारी होने के बाद ये जो वक्फ इंस्टीट्यूट है यतीम खाना, उसको वो मैनेजिंग कमेटी को सुपरसीड किया गया था। अब फिर वही मैनेजिंग कमेटी की बी टीम यहाँ पर आ रही है। हमको ये है, ये लोगों को शिकस्त देने के लिए, ये लोगों को जो यतीमों का हक छीन रहे हैं, यतीमों का खाने वाले लोगों को शिकस्त देने के लिए हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर, गुलबर्गा की आवाम, पूरी आवाम मुत्तहिद होकर उनके सामने मुकाबला कर रहे हैं। हम इसीलिए हम इलेक्शन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें शफाफियत नहीं रहेगी? इंतखाबात हमें उम्मीद है इलेक्शन ऑफिसर से हमें उम्मीद है रहेंगे, लेकिन कुछ लोग नया चेहरा लेकर आ रहे हैं, उनके ताल्लुक से हमको भरोसा नहीं है। यतीम खाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या इक़दाम करने का हर वो चीज़ जो यतीम खाने के इंटरेस्ट में होगा, यतीमों के लिए होगा। वो इदारा सिर्फ यतीमों के लिए है, लेकिन वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना, शॉपिंग मॉल बनाना, यही उनका मकसद है। यतीम वहाँ पर 6 यतीम है वहाँ पर,
जी। और 12 एम्प्लॉयज़ हैं इसके अंदर। कितनी शर्म की बात है। यतीमों को बड़ा नंबर बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले हमारा मकसद ये होगा कि यतीमों का जो नंबर है 6 नंबर है, 6 से कैंपेन करना होगा उसके लिए। उसके हर जगह पर हर कोने पे जाकर जितने भी यतीम उनको कलेक्ट कर यतीम खाने के अंदर भर्ती करने का काम करेंगे। यतीम खाना एक वेलफेयर इदारा है, भलाई जी इदारा। जी तो ये यतीम बच्चे उसमें नहीं है जैसा आपने बताया। जी। तो यतीम बच्चों को वहाँ ख़याम ताम की सहूलत के साथ साथ जी जो दूसरे नौजवान बेरोज़गार हैं जी। मुसलमानों जी। में, जो यतीम हैं उनको रोज़गार फराहम करने के लिए यतीम खाने की जो इतनी बड़ी जगह है वहाँ कुछ उनको जगह अलाट की जा सकती है। वजह इसके क्या हो रहा है कि पूरे बड़े बड़े मालदार, जी। जैसा कि आपने कहा, सरमायादार लोग पल रहे हैं यतीमों के नाम पर दुकानें जो वहाँ डाली गई हैं। किसी गरीब की दुकान वहाँ नहीं है। जी। तो यकीनन आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यकीनन आपका जो सवाल है बहुत ही वाजिब सवाल है। वहाँ पर सिर्फ पैसे वालों का है, ये है। तो हमारा मकसद ये है यतीम के साथ साथ जो गरीब है, जो पढ़ नहीं सकते, तालीम नहीं हासिल कर सकते, ये एक बहुत बड़ा इदारा है। गुलबर्गा शहर का यतीम खाना बहुत बड़ा इदारा है। नहीं, मैं वक्फ आपको ये इंस्टीट्यूट कह है, रहा हूँ कि उसके अंदर हार्ट ऑफ द सिटी में उसका वहाँ लोकेशन जो देखिए आप फ्लैट्स भी बनाए गए हैं तो फ्लैट्स- अमीर लोगों के वही- लिए वही मैं वहीं पर आ रहा मैं हूँ। ये बताना चाह मैं रहा हूँ वहीं कि पर आ रहा हूँ। ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जैसा वही सेंट्रल बता रहा वक्फ हूँ। काउंसिल से। तो वो जो अपार्टमेंट भी बनाया गया है वो कोई पब्लिक नोटिस नहीं दी गई। अंदरूनी जो है अलॉटमेंट किया गया है। पब्लिक नोटिस अगर देते तो गरीबों को वहाँ पर हम मिनिमम रेंट के ऊपर वहाँ पर गरीबों को भी हम रख सकते थे। और फ्लैट अभी बनाने की ज़रूरत नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर को कोई पावर ही नहीं करते। तो मैनेजिंग कमेटी के वो इसमें नहीं बनी हुई है अपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में जो है वो अपार्टमेंट बना है, हम उसके बारे में भी हम सोचेंगे। तो एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जी जिसमें गरीब नौजवानों को बगैर डिपॉजिट जी। के कम से कम किराया हो। जी। हम शहर में देखते हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल से करोड़ों रुपए लाकर कॉम्प्लेक्स बनाए जी। गए, लेकिन वहाँ किसी गरीब को दुकान नहीं दी गई। ये हॉस्टल्स की भी हालत जो ऐसी है। क्यों हो गया है, मैं इससे पहले बताया, जो पहले की जो मैनेजिंग कमेटी थी वो गरीबों के लिए नहीं थे, वो सिर्फ पैसे वालों के लिए थे। इसीलिए जो है पैसे वालों को वहाँ पर दुकानों का अलॉटमेंट किया यहाँ भी लोग जो आ रहे हैं वो अब जो गरीबों के होगा, लिए नहीं आ रहे। अगर हमको मौका मिला, यकीन मानिए जितने भी बेरोजगार नौजवान वहाँ पर अगर ये करना चाहेंगे तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस गरीबों को ही देना। पैसे वाला तो कहीं भी कमा लेगा, उसको पैसे की भी जरूरत नहीं है, दुकान की जरूरत नहीं है। लेकिन बेरोजगार नौजवान हमारे पास बहुत हैं, हर जगह पर बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए हम मदद करना। गरीब स्टूडेंट हैं, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप देने के लिए सिर्फ यतीम के साथ साथ गरीबों के लिए भी, गरीबों की शादियों के लिए भी मसला है। वहाँ पर शादी हाल, गरीबों का एक शादी हाल नहीं है। इतना गुलबर्गा शहर में इतना बड़ा शहर है, बड़े बड़े लीडर यहाँ पर हैं, लेकिन एक मुस्लिम के लिए, गरीबों के लिए शादी महल नहीं है। और सिर्फ यहीं पर महदूद रखें हम, ये सिर्फ प्रॉपर्टी को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं दूसरे एक्सटेंशन एरिया में। इसे इन सोर्स ऑफ इनकम से हम दूसरी जगह से हम लैंड खरीद सकते हैं यतीम खाने के तहत ही, खरीद के वहाँ पर हम स्कूल खोल सकते हैं। यतीम खाना है, हमारे बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ रहा नहीं मालूम। यतीम खाने के पीछे जो है, यतीम बोले तो हम अपनी औलाद की जैसे, औलाद से ज़्यादा यतीमों की हम देखभाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पर फसादात होते हैं इसमें जो बच्चे यतीम हो जाते हैं उनको क्रिश्नर मशीनरीज ले जा रहे हैं, तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। ये आपका जो सवाल है उसी में जवाब है, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। जवाब दे दिया। हकीकत में आप गुलबर्गा शहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वही हालत है, पूरे हिंदुस्तान में। जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुत सारी इसमें बदनवानियाँ हुई हैं, जी, तो अब नई कमेटी इसके बारे में कोई एक्शन ले सकती है या कुछ सोच सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यकीन है गुलबर्गा के अवाम, गुलबर्गा के वोटर्स अच्छे लोगों को चुनकर भेजेंगे। उनको पता है यहाँ पर कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, उनको हर चीज़ से वो लोग हर चीज़ से वाकिफ हैं। हमको वोटर्स के ऊपर पूरा यकीन है। वो बी टीम जो आने वाली है, जो भी होंगे, वो उनको आने नहीं देंगे। अब ये जितना जोश खरोश दिखाया जा रहा है इस इलेक्शन के लिए, तो इसमें क्या वजह हो सकती है? लोग क्यों इतनी दौड़े दिलचस्पी से आना चाह रहे हैं? जोश नहीं है, तो जो मिसमैनेजमेंट हुआ, इतने जो लोग मेंबर बने हुए हैं पार्टी सुपर सीड होने के बाद, पेट्रोल मेंबर, लाइफ मेंबर, ऑर्डिनरी मेंबर 5,000, 2,500, 500 रुपये जो देकर मेंबर बने, ये पैसे देकर जो मेंबर बने वो गुस्से का इजहार करें। वो लोग अवाम जो है गुस्से का इजहार करके वो लोग मेंबर बने हैं इसके अंदर, मैनेजिंग कमेटी, ये यतीम खाने के साथ मेंबर बने। क्यों गुस्से का इजहार किया? क्योंकि उनको इसलिए गुस्सा है कि यहाँ पर इतने सालों से मैनेजिंग कमेटी ने कुछ नहीं किया, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं किया, इसलिए अपना गुस्से का इजहार किया। वो मेंबर नहीं बने, वो हकीकत में वो अपना गुस्से का इजहार करें। उन वोटर्स में इस इलेक्शन के लिए बेदारी लाने के लिए आप क्या? बिल्कुल हम कैंपेन करेंगे,
कैंपेन करेंगे, हर लोगों तक हम जाकर हम उनको पूछेंगे, हम उनके रिक्वेस्ट करेंगे। आप क्या अपील करेंगे वोटर्स से? मैं वोटर्स से यही कहूँगा कि जितने भी वोटर्स हैं वो सही फैसला ले, ईमानदार लोगों को यतीमों के हक़ में वोट डालना है, क्योंकि उनकी भी बराबर की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि आयत नंबर सूरह निसा आयत नंबर 10 के अंदर गरीबों का, यतीमों का अगर एक दाना भी अगर खा रहे हैं तो मैं तुमको आग खिलाऊंगा, पेट में आग भर दूंगा। तो उसी की चीज़ को हम कन्विंस करेंगे, लोगों तक बताएंगे। उनकी बराबर की जिम्मेदारी है, वोटरों की भी बराबर की जिम्मेदारी है। गलत लोगों को चुनेंगे तो वो भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। अच्छे लोगों को, ईमानदार जो ईमानदार है, जो खिदमत करने का जज्बा रखता है, तो वैसे लोगों को चुनने की हम तमाम लोगों से अपील करेंगे। आप अगर अकेले चुने जाएं सिलेक्शन में और जो बी टीम आ जाए तो आप किस तरह फाइट करेंगे? फाइट करना ही हमारा शुरू से फाइट ही करें हम, हमेशा किसी से प्यार मोहब्बत से बातें नहीं करें, हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाएं, आज भी उठाते हैं, कल भी उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो इलेक्शन हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आपकी जद्दोजहद और स्ट्रगल का नतीजा है। नहीं, सब लोग तमाम गुलबर्गा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, गुलबर्गा की तमाम गुलबर्गा की आज इलेक्शन में कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये मेरा कामयाबी पर ये यतीम खाने के ताल्लुक से मेरा अकेले का इनफरादी तौर पे कोई स्ट्रगल नहीं है, गुलबर्गा की तमाम आवाम का स्ट्रगल है इसके अंदर। मैं अकेला कुछ नहीं, बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं यहाँ पर इलेक्शन करने के लिए, वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं। तो अब वो लोगों के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, वो लोग फैसला करने वाले हैं। जो भी डिसीजन लेंगे अवामी वोटर से डिसीजन लेंगे, उनके हम फैसले पे हम छोड़ देंगे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफा के इंतखाबात में 51 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। यतीम खाना अंजुमन अंसारुस्सुफा गुलबर्गा के इंतखाबात की शफाफियत पर उठा सवाल। आशा वर्कर्स की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल। पंचायत इंतखाबात के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। गुलबर्गा शहर में 22,674 मकानात में नहीं है बैतुल खला। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। नाजरीन, आप ATV का खबरनामा और दीगर खुसूसी प्रोग्राम्स YouTube और Facebook पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं।